Welcome back, students. So this is the last video for the chapter trigonometry. As promised, we will complete this chapter in 3 parts. This is the 3rd part and the very important part of this chapter. Questions from this part may appear in last section of your exam because this section mainly consists of your word problems. So we are coming to the topic application of trigonometry. So if you want to open your textbooks, turn on to page 133 of your SSC textbook, right? Okay. Now application of trigonometry kya hai? What is basically application of trigonometry? Sometimes we want to calculate the height of a building or a width of a river or a tower. We see a light tower. Practically we cannot go and measure, but using trigonometric ratio of sine, cos, tan and other 3, we can calculate these values. Okay. Few things we need to understand before we go to the problems. Okay. First of all, in these problems, you need to have a very good sense of making rough sketches. Suppose if I say there is a tower, there is a building, there is a tree, I want you guys to make a straight line which is to be considered perpendicular to the ground level. Okay. And if there is an object, we will represent it with a point at somewhere. I will show you how it is done. Okay. Now the main and important thing, first we have to learn about the topic line of vision. Now line of vision, we will consider that if I am seeing anything, I am right now facing the camera, my line of vision is this straight, ऐसा straight है, एकदम ऐसे straight. Now if suppose I am standing here, my friend Ramesh is standing on the 7th floor of his building, so automatically my line of vision will be like this. Okay. Now as per the ground, my line of vision should be this, but now my neck is elevating till I can see my friend till on 7th floor. So my neck is elevated and my line of vision is now elevated. This angle by which my line of vision gets elevated like this, see, this is the line of vision पहले. Now if I am to be someone on the 7th floor, वो ऐसे हो गया. Now it has raised up to a certain angle. That angle I call angle of elevation. Now some sums will come where they will say you are standing on a ground and you are seeing on the top of the building or top of the tree or there is a rocket going on, वैसे तो वो सब में आप angle of elevation use करोगे. Okay, this considering this is in accordance with the ground. Now अगर elevation है, आप अपने फ्रेंड को ऊपर देख रहे हो तो आपकी नेक ऊपर जा रही है. Similarly, your friend, if he is standing on the 7th floor, his line of vision with respect to you will be like this. आप यहाँ खड़े हो, वो यहाँ खड़ा है, उसका line of vision यहाँ पे है. But if he wants to see you, तो वो ऐसे दिखेगा. Now his neck will turn down. This is called angle of depression. 3 चीजें, line of vision, angle of elevation और angle of depression. ये 3 चीजें, if you can understand, topic application of trigonometry will be very simple for you. Okay. Now moving on, the first example, page 133 पे ये example है. I will read out the question. From the top of a building, an observer is looking at a scooter parked at some distance away. एक जन खड़ा है अपनी बिल्डिंग के टॉप पे, तो हम लोग पहले बिल्डिंग बना देते. Now he is standing right here at the top of the building. जहां पे जो खड़ा है उसकी line of vision exact horizontal बना देनी है हमें. Now this is his line of vision and this is the top of the building. He makes an angle of depression. मैंने red में mark किया है. These points are these are the keywords of the sum. ये keywords पहचान लिया and your sum is done. Angle of depression. By default नीचे top of the building से he is creating an angle of depression to the scooter. मतलब scooter यहाँ पे है end point पे of 30 degrees. Angle of depression is of 30 degrees. Now what mistake guys make?
एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ विजन बनेगा. सो इफ माई लाइन ऑफ विजन इज this is the angle of depression 30 degrees and not this. Make clear. Now this is where the scooter is parked. This is the building. I will name the building AB. Building का height 40 meters. 40 meters दिया हुआ है. Angle of depression 30. This is B. Find how far is the scooter from the building. मतलब basically आपको distance of building और scooter find करना है. मतलब X. I will name this distance AC. A man he is standing right here. उसने अपना स्कूटर पार्क किया है. उसे चेक करने के स्कूटर खड़ा है कि नहीं खड़ा है, नीचे देख रहा है. उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, लेकिन लाइन ऑफ विजन ये है. लाइन ऑफ विजन से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बनता है. मतलब पहले वो यहां देख रहा था ऐसे, अब उसने ऐसे देखा, तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ यू हैव टू फाइंड x. We will use trigonometric ratios and I will show you how to write this sum also. आपको sum बनाना भी अच्छा है, दिखना भी अच्छा चाहिए sum. Okay? Now you will explain that in the figure. We will give this figure a name. Every figure should have a name. Figure A. AB is equals to 40 meter height of building. X is the distance of scooter from the building. Okay, now I'll name this point also A, B, C and D. ये D, B, C आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है. I will write angle DBC 30 degree angle of depression. Okay. Now basic properties. BD is parallel to AC and BC is acting as a transversal, so I can easily say that angle BCA is also 30 degree by the property of alternate angles. And this was my master stroke in the sum. और आपका sum अभी is virtually done. Sum solve हो चुका है. In a triangle, you have one side and you have one angle, and you need to find another side. Bring in your trigonometric ratios, sine, cos, tan. Remember the formulas: sine opposite upon hypotenuse, cos adjacent upon hypotenuse, tan opposite upon adjacent. This is the angle I am given. मेरे को opposite side है और adjacent find करना है. Opposite side है and adjacent find करना है. एक ही trigonometric ratio यहां मुझे काम आएगा, that will be tan theta. So I will write from the figure. Tan 30 is equals to opposite, that is AB, upon adjacent, that is CA. AB is 40. This is unknown. Tan 30 का वैल्यू टेबल से याद आना चाहिए. As I told you in the last lecture, टेबल आपको एग्जाम के पीछे बना देनी. जैसे आपका ऐसा कोई सम आए तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. Tan 30 is very simple. 1 upon root 3 is equals to 40 upon x. Basic max of cross multiply. X is equals to 40 root 3. अगर एग्जाम में आपको root 3 का वैल्यू नहीं दिया हो, your sum is done. But here we are having the value of root 3 as 1.73. So you will do x is equals to 40 into 1.73 and this will be your answer. The answer comes to 69.2. This is your answer. This is how we will solve these sums.
सो आई डिड नथिंग, बट मैंने खाली बहुत एक सिंपल सी चीज की कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो राइट मार्क किया. इफ इन केस समवन मार्क्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हियर, वो यहां से tan थीटा लेता ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाता x अपॉन 40 एंड आपका पूरा सम उल्टा हो जाता. एंड डिस्पाइट यू बीइंग स्टडिंग एंड आपको सम पता होने के बावजूद भी आपको ये इजी सम रॉन्ग मिल जाता. दीज आर वेरी इजी सम्स. At the end you will complete this. The scooter is at the distance of 69.20 meters from the building, so that your examiner will not cut any marks if you missed any point. Okay, we will do another example. Okay, अभी हम लोग दो सम्स और देखेंगे. एक मैं आपके सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट सम सॉल्व करूंगा. सेकेंड, दिस सम ये मिसलेनियस में स्टार मार्क सम है, विच वी कॉल इट एज डी ग्रुप सम्स. तो मे बी वो आपको एग्जाम में आ सके, थोड़ा टीडियस सम्स होते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन यू दीज टू सम्स. अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म. इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वॉज सो इंक्लाइंड दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड. अभी एक ट्री है. नाउ पहले ही मैंने आपको बताया था कि सारे वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स को हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पकड़ेंगे. एक ट्री है, इसका एक पार्ट टूट गया. नाउ इट इंक्लाइंड. अभी वही पार्ट इंक्लाइन होके ग्राउंड पे ऐसे गया कि इसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बनाया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड. मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड. ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री and point where it touched the ground was 10 meters. ये ट्री का फुट होगा. यहां से जिस पॉइंट पे वो अपर पार्ट आके टच हुआ, that is 10 meters. What is the height of the tree? What was the height of the tree? So height basically कितना होगा, ये पार्ट प्लस ये पार्ट. Now why I say ये पार्ट प्लस ये पार्ट, because initially ट्री इतना लंबा था, टूट के वो नीचे आ गया, तो एग्जैक्टली जो पार्ट ये होगा वही साइज ये पार्ट होगी. सो इफ आई एम एबल टू फाइंड दिस पार्ट, दिस प्लस दिस विल बी माय टोटल हाइट ऑफ द ट्री. ओके, नाउ सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि हमें एंगल ऑलरेडी पहले से ही अंदर है. अनलाइक लास्ट सम वी मेड इट थ्रू ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ आई विल नेम दिस पार्ट्स C, A, B, D. AB is the height which is now broken. AD is the broken part of the tree. BD is the distance from the foot until it touches the ground. Now you need to analyze this sum again कि कौन सी वैल्यूज यूज हो सकती है इसमें. साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक. एक साइड है हमारे पास. नाउ हमें ये दोनों निकालने हैं. ओके, नाउ कैसे करेंगे हम लोग इस सम? सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे हम लोग that BC is the height of the tree, AD is the broken part, we will name them. Okay, now AC and AD will be equal. I will take them as x. This I don't know. AB is equals to x. एक पार्ट मैंने x ले लिया, एक पार्ट y ले लिया, एक पार्ट मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है. ओके, नो इश्यूज. आई विल गो विथ tan थीटा. tan ही क्यों? ऑपोजिट चाहिए, एडजेसेंट है. ऑपोजिट चाहिए, एडजेसेंट है. ये दो वैल्यूज हमें सिर्फ tan ही दे सकता है, बिकॉज साइन और कॉस में दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है. राइट, साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है. सो आई विल गो विथ tan थीटा. tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट मीन्स मेरा साइड AB, एडजेसेंट मीन्स मेरा साइड BD. सिमिलरली जैसे पहले सम में था tan थीटा 1/√3, AB is x upon 10.
सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 10/√3। हाफ सम डन, आधा सम हो गया, ट्री का एक पार्ट मुझे मिल गया। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज फाइंड आउट द सेकेंड पार्ट। अभी एक बार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज कर ली tan 30 की। नाउ आई नो दिस इज 10√3। इफ यू गो टू योर बेसिक्स, दिस इज ए राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है और आपको दो साइड मिले हुए हैं तो द मैजिकल फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ओके, विल गिव यू द हाइपोटेन्यूज। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली इसका वैल्यू 20/√3 दिया हुआ है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मैं यहां पे सॉल्व नहीं करता हूं, बट इट इज वेरी सिंपल। 10^2/√3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 100/3 इक्वल्स टू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 400/3 आना चाहिए आपका आंसर AD स्क्वायर का। सो AD विल बी 20√3। AD या AC हमने y पकड़ा है, सो y विल बी 20√3। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख देता हूं बाय पाइथागोरस। ओके, बाय पाइथागोरस, जैसे कंफ्यूजन नहीं हो, टेक्स्ट बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है इसकी। नाउ माय सम इज डन। मेरी हाइट क्या थी ट्री की, ये और ये, बिकॉज ये वही पार्ट है जो टूट के गिरा है। ओके, सो x प्लस y इज द हाइट ऑफ माई ट्री। x इज 10√3, y is 20√3, this is 30√3। लास्ट सम में हमें √3 का वैल्यू दिया हुआ था तो हमने पुट करके आंसर निकाला। यहां पे नहीं दिया हुआ है, बट मेनी टीचर्स डोंट लाइक डिनोमिनेटर में √3। सो व्हाट यू डू, जब भी आपको रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में मिलता है, यू रैशनलाइज, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 कर दो। यहां मिलेगा 30√3/3, 3 1 जा 3 10 जा, फाइनल आंसर 10√3। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। डन। नेक्स्ट सम, लास्ट सम, ये मिसलेनियस का लास्ट सम है। सम पे ऐसे स्टार मार्क है, ओके, डी ग्रुप टाइप सम्स आते हैं, वेरी इजी। सिर्फ थोड़ा समझना है इसमें, एक छोटी सी चीज है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में, नथिंग मच। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20. Key point, angle of depression 20. Now लैंड कर रहा है पायलट हवा में ही है, ये सम समझना अच्छे से, पायलट हवा में ही है। नाउ इफ आई एम हियर, मेरा लाइन ऑफ विजन ये रहेगा। सो पायलट हवा में ही है अभी भी। मैं पहले एक वर्टिकल चीज बना देता हूं, यहां पे पायलट है, यहां पे लाइन ऑफ विजन उसका यहां पे रहेगा। आप जहां रहोगे आपका लाइन ऑफ विजन वहां रहेगा। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन वॉज 200 km/h, 200 km/h से प्लेन उड़ रहा है। द प्लेन रीच द ग्राउंड, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 वाली पॉइंट पहले मैं बता देता हूं। यहां से पायलट नीचे देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपका बनेगा, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन से ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन करोगे, ये वर्टिकल लाइन से नहीं। अगर यहां मिस्टेक कर दी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रॉन्ग लग जाएगा एंड योर सम विल बी रॉन्ग। सो अगेन, नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 km/h। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 seconds। सो पहले पायलट यहां था, उसका लाइन ऑफ विजन ऐसे, ही मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 विद द ग्राउंड एंड नाउ इट स्टार्ट्स लैंडिंग। It landed after 54 seconds. 54 seconds के बाद लैंड किया। Find the height at which the plane was when it started landing. पूछा ये गया है कि समझिए अब मैं हवा में उड़ रहा हूं, Now I want to land. अभी से 54 सेकंड के बाद मैं ग्राउंड पे रहूंगा। जब से मैंने लैंडिंग चालू की ग्राउंड पे आने के लिए, वहां पे मेरी हाइट क्या थी, कि समझो यहां मैंने सोचा अब मुझे लैंड करना है प्लेन, यहां से तब मैं कहां खड़ा था एज पर ग्राउंड, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। ओके, तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। यहां मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट करता हूं। इसमें सारे डायग्राम्स, एवरी स्केच
will have a right angle triangle because trigonometric ratios are incomplete without right angle triangles. Okay, तो ये right angle triangle मैंने complete कर दिया, A, B, C and D. दो पैरेलल लाइन मुझे दिख गई, A and D, B, C, ये दो पैरेलल लाइंस हो गए. पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, alternate angle 20 डिग्री, योर फर्स्ट शॉट टू द सम. आधा सम यही सॉल्व हो गया अगर ट्राइंगल की अंदर वाली एंगल मिल गई, जैसे यहां मिली थी, यहां पे तो पहले ही मिल गई थी हमें, यहां हमें अभी मिली. कहां से? ऑल्टरनेट एंगल से मिली. बिकॉज अभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया. सो यू विल स्टार्ट के इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल DAC is equals to angle ACD is equals to 20 degrees since alternate angles. Now I don't need to explain you कि वो alternate angles कैसे बना. Fine. Half sum done. कुछ हाइट या कुछ मिला हुआ है? नहीं. हमें एक चीज मिली हुई है, sin 20 पहले से डिफाइंड है बिकॉज टेबल में हमें उसके पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू नहीं है. अभी हमारे पास हाइट नहीं है. ओके, चलो कोई इशू नहीं. बट वी हैव स्पीड. स्पीड हमको मिली हुई है, स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंडली हमें 54 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है. यहां पे दो ऐसी वैल्यूज हैं जो मिसमैच हो रही है, एक आवर में है, एक सेकेंड्स में है. यहां तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो या इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, इसको आवर्स में कन्वर्ट करता हूं. 54/3600, राइट, बिकॉज 1 hour is equals to 60 into 60 seconds, that is 3600 seconds. So 1 second is equals to 1/3600 hours. तो 54 सेकेंड हो गया 54/3600 hours. फाइन. अभी दोनों सेम वैल्यू हो गई मेरे पास. मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है. स्पीड और टाइम से फिजिक्स की एक बहुत अच्छी फॉर्मूला है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फ्रॉम दिस मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा. फाइन. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ओके, स्पीड कितना है? 200 किलोमीटर. टाइम 54/3600. 3. डिस्टेंस मिल गया 3 किलोमीटर. सॉरी. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज 3 किलोमीटर क्या है? ये या ये. 3 किलोमीटर इज दिस डिस्टेंस जहां पे प्लेन था और फाइनली जहां पे आके लैंड होगा. सो दिस इज 3 किलोमीटर्स. बाकी है कुछ भी नहीं है सब में. नाउ वी नीड टू फाइंड ए बी. 20 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाला मुझे चाहिए और एडजेसेंट मुझे मिला हुआ है. ऑपोजिट चाहिए, एडजेसेंट मिला हुआ है. एक और हिंट है, यहां पे आपको साइन है. बाय डिफॉल्ट साइन तो आपको यूज करना ही करना है ना इस सब में. तो साइन 20 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट इज ए बी, hypotenuse is AC. We are finding AB. AC है 3. Sin 20 का वैल्यू 0.342. Therefore AB is equals to 3 into 0.342. Simple case of multiplication and your answer is done. इसका आंसर आता है 1.026 किलोमीटर्स. अगर आपको मीटर में पूछते हैं 3 पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगी, आंसर विल बी 1026 मीटर. सो उस टाइम पे जब पायलट लैंड करने का सोच रहा था तब ग्राउंड से लेके जो प्लेन की हाइट थी वो थी 1026 मीटर्स. ओके, सम बहुत सिंपल था, सिर्फ थोड़ी सी चीजें हमको ध्यान देनी थी. मैंने खाली क्या चीज ध्यान दी, पहले तो मैंने ये दोनों वैल्यूज सेम की, सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट किया एंड फिजिक्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैंने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया. दैट्स इट.
फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया एंड आवर सम इज डन। बहुत सिंपल सम से ये एक्सरसाइज में एक सम है जिसमें दो पोल्स रहते हैं, वायर जॉइंट रहती है, दैट इज वेरी इजी, एक रिपीटेटिव सम है। ये ट्री वाला सम एग्जाम में आ चुका है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सम। एक ईगल वाला सम भी है उसमें, you try it out. If you have any difficulties, kindly leave the sum number in the comment section. Okay, we will get back to you in some time और आपको sum का solution दे देंगे। And you should watch our part 1 and part 2 videos also. For any other doubts, you can contact us directly. All the links of our social media handles are given below. Till then, take care, study hard. Kindly like, share and subscribe this video. Thank you.